I hope that all of you are safe and sound in your homes. Okay, so we will start our new topic today, which is on page number 65, the need for addressing. अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की एड्रेसेस के बारे में, इंटरनेट के आईपी जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं उसके बारे में. द नीड फॉर एड्रेसिंग है, एड्रेसिंग की एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ती है. A packet is the unit of data sent from one device to another. It requires its destination address just like we write address on an envelope while sending a letter. वो कहते हैं पैकेट जो होता है वो एक डाटा का एक यूनिट होता है बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच एंड अदर. इट जस्ट It requires its destination address just like we write address on an envelope while sending a letter. तो फिर क्या होता है कि हमें जो destination का एड्रेस होता है जहां पर हमने अपना डाटा पहुंचाना होता है वहां का एड्रेस हमें लाजमी चाहिए होता है. Similarly, they have given the example of an envelope that we studied in our previous lecture also. कि envelope था, उसमें आपने लाहौर to इस्लामाबाद वो envelope भिजवाना था तो आपने उसके ऊपर एड्रेस लिख दिया और and whatsoever the process is done in that phase. So for the packet that you want to transfer or the unit of data that you want to transfer from one device to another device, it needs a destination address. An application running on the recipient side accepts packet and assembles them to show a meaningful information. अब वो कहते हैं जो एप्लीकेशन जो रन कर रही होती है उसमें क्या होता है कि जो रेसिपिएंट साइड होती है जहां पर आपका एड्रेस जो इन्फॉर्मेशन है आपने भेजनी होती है वो क्या करती है, जो पैकेट्स आप भेजते हो इन्फॉर्मेशन के डाटा के उनको एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में असेंबल कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है. If there are more than one applications ready to accept a packet, then a number called port number distinguishes the targeted application from the other applications. वो कहते हैं कि अगर एक या एक से ज्यादा पैकेट्स आप भेज रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो वो ज्यादा है या डिफरेंट चंक्स में जो आपने डिवाइड की हुई है, तो फिर क्या होगा, हर किसी को वो एक अलग पोर्ट नंबर असाइन कर देगा. ठीक है, हर इन पैकेट के ऊपर एक अलग पोर्ट नंबर आ जाएगा. हर पोर्ट नंबर जब अलग अलग आएगा तो उससे वो पता चल जाएगा, उसको इस तरह से वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि बाकी एप्लीकेशंस और जो टारगेटेड एप्लीकेशन है जो एक्चुअली आपने भेजनी है या जो मैसेज आपका है वो कन्वे जो करना है वो कौन सा है और बाकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं. So proper addressing is required for reliable data transfer. So that is why we need the proper addressing for the proper data transfer. ताकि आपका data जो है वो properly transfer हो जाए. That is why we need a proper addressing scheme. Next is the importance of addressing in data communication. Before sending a message, source must know the destination address. So what they are saying here, that they are saying that if you want to send any message to anyone, you must know the address of the destination. कि जहाँ पर आपने अपना एड्रेस भेजना है वहाँ का जहाँ आपका डेस्टिनेशन है वहाँ का एड्रेस क्या है. Devices on a network need addresses in order to communicate with each other. अब जब devices ने आपस में communicate करना है, they also needs the addresses of each other so they can do the proper communication. So giving an address to a message is the first step, and the second step is to transmit the packet to its intended recipient. So there are two steps involved in data communication, in the addressing of data communication. First one is to give an address to a message. जो भी आपने message convey करना है उसका एक address देना है. And the second step is to transmit the packet. जो आपने message भेज रहे हो उसका एक packet जो बन गया, एक chunk जो बन गया, वो आपने जो intended recipient को भेजना है उसको उसका पास जो पैकेट भेजने का प्रोसेस है, ट्रांसमिशन ऑफ वे है, वो सारा प्रोसेस जो है दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इन ट्रांसमिशन. ओके, नेक्स्ट इज मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग. अब दो तरह से एड्रेसिंग की जा रही है. एक टेलीफोन एड्रेसिंग में मतलब फोन कॉल के थ्रू अगर आपने एड्रेसिंग करनी है तो फिर किस तरह से होगी, और अगर आप एक नेटवर्क के थ्रू एड्रेसिंग कर रहे हो तो फिर किस तरह से होगी, नेटवर्किंग में एड्रेसिंग कैसे होती है. They have given a very simple example over here. Suppose you want to make a phone call to your friend. Before calling, you need to know exact telephone address, that is the telephone number of your friend. So on the internet, the telephone number corresponds to an IP address that is known as internet protocol. Like a telephone number, all IP addresses are unique.
Each device gets its own IP address when it gets connected to the internet. अब वो कहते हैं कि for example if you want to make a telephone call to your friend, so you needs to know the actual telephone number of your friend. phone number आपके पास होगा तो ही आप communicate कर सकोगे, उसको phone call मिला सकोगे. Similarly जब आपने network addressing की बात करोगे तो वहां पर आपके पास एक IP एड्रेस होता है. तो दूसरी डिवाइस का, दूसरे बंदे का आपके पास आईपी एड्रेस होगा तो आप इंटरनेट पर उसके साथ कनेक्ट हो सकोगे. अब ये आईपी एड्रेस हमने नहीं याद रखना होता, ये सिस्टम का काम होता है, ये यूजर का वो आपका इंटरनेट के बैक एंड पे जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वहां पर ये सारा सिस्टम चल रहा होता है कि किस तरह से आपके डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्ट करेंगी. आप तो सिंपल एक फॉर एग्जांपल यू हैव जस्ट मेक अ सिंपल अकाउंट ऑन फेसबुक. अब फेसबुक पे अकाउंट तो आपने बना लिया. अब व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दो जब लोग आपस में कनेक्ट होंगे तो उनके आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो शेयर हो जाते हैं. so, उनकी डिवाइसेस को पता चल जाता है कि हमने जो मैसेज भेजना है वो किस आईपी एड्रेस पर भेजना है. If an IP address of a device is fixed in a network, it is called static IP address. Otherwise, if each time a new connection is made, a new IP address is assigned, it is called dynamic IP address. ये short question की definitions भी हैं. Differentiate between static IP address and dynamic IP address. स्टैटिक का मतलब होता है अगर हर दफा आप एक ही डिवाइस यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक ही वाईफाई कनेक्शन आपके घर में लगा हुआ है, एक ही डिवाइस आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या होगा कि आपका एक ही आईपी एड्रेस आपको असाइन कर दिया जाएगा जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्टैटिक आईपी एड्रेस. मतलब ये चेंज नहीं होता. एंड इफ यू आर यूजिंग अ न्यू कनेक्शन ईच एंड एवरी टाइम, जैसे कि पहले हम यूज करते थे, काफी पहले यूज होते थे डायल अप कनेक्शन, जिसमें एक फोन का कार्ड मिलता था जिसको स्क्रैच करते थे और कनेक्शन बनाते थे अपने इंटरनेट का. तो अगर हम हर दफा उस तरह से कनेक्शन यूज करेंगे तो हर दफा हमारा आईपी एड्रेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा. So if our IP address is changing each time we are making a new connection, that is known a dynamic IP address. मतलब changing IP address. Next is sending HTTP request and receiving HTTP responses over the internet. The World Wide Web WWW is a system of internet servers. सबको पता है ये बात. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक पूरा इंटरनेट सर्वर्स का एक सिस्टम है. इंटरनेट पे ढेर सारे सर्वर पड़े हुए हैं. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, फाइल सर्वर है, मेल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अलग सर्वर है, कोई और प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए अलग सर्वर है. इन कलेक्शन दे आर मेकिंग एन इंटरनेट सर्वर. Server serve a request sent by a client. Server क्या करते हैं? This serves a request. जो clients what the clients wants from them, server serves the request of a client. This request is called HTTP request. अब जो रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर से कर रहा है उसको रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं? HTTP रिक्वेस्ट. HTTP stands for hypertext markup language. Sorry, HTTP hypertext transmission protocol. Hypertext transmission protocol. So, so the communication between a server and a client is based on requests and their respective responses. तो वो क्या कह रहे हैं? अब क्लाइंट और सर्वर इन दोनों ने कम्युनिकेशन करनी है, तो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? एक दूसरे की रिक्वेस्ट और एक दूसरे का रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल what the client is actually requesting from the server and the response which the server is generating for the request of the client, these both are together making a quite big connection between both of them. And the client is receiving a proper information from the server according to his or her requirement. Using a web browser, when you type a URL, uniform resource locator. Definitions है, we have studied all these HTTP, HTML, URL in our class 8th book. 8th में हमने HTML का जब पूरा concept पढ़ा था, 7th में बल्कि 8th में भी पढ़ा था और 7th में भी पढ़ा था. वहां पर हमने ये सारी terms को discuss भी किया था. Using a web browser, when you type a URL stands for Uniform Resource Locator, like HTTP // www.pakistan.gov.pk. You are sending a request. अब वो कहते हैं कि जब आप वेब ब्राउजर पे या गूगल क्रोम पे, मोजिला फायरफॉक्स पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, कुछ भी आप किसी भी सर्च इंजन पे आप टाइप करते हो www.pakistan.gov.pk, for means to say that you are sending a request and in response you will get all the contents of that website. अब जो भी आप वेबसाइट ओपन करना चाहोगे उस पे जो रिलेटेड वेबसाइट बनी हुई है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिक्वेस्ट है क्लाइंट से कि मुझे ये वाली वेबसाइट ओपन करके दिखाएं,
आपके रिस्पॉन्स in the response of your request, all the information present on that website will be displayed. In its response you get the contents of website that may contain text, images or sounds. आपके अब वेबसाइट पे जो भी आपने रिक्वेस्ट की है, जिस भी वेबसाइट को ओपन करने की, उस वेबसाइट पे अगर कोई इमेजेस पड़े हुए हैं, कोई पिक्चर्स पड़ी हुई है, या कोई साउंड क्लिप पड़ा हुआ है, कोई वीडियो है, कुछ भी है, वो सारे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे. These contents are embedded in an HTML. वो कहते हैं कि अब ये जो contents हैं, मतलब जो आपकी text है, images हैं, sounds वगैरह हैं, जो कुछ भी आपका वहां पर पड़ा हुआ है, वो किस language में पड़े हुए हैं? HTML. And HTML stands for Hypertext Markup Language. We will discuss in detail about HTML in unit number 5 also. In this case, your computer works as HTTP client, whereas this computer serving you a web page is called HTTP server or web server. अब वो कहते हैं जो आपका कंप्यूटर काम कर रहा है वो HTTP क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा है, और जो कंप्यूटर या जो सर्वर आपका काम कर रहा है या जहां से वेब पेज आपका सर्व होकर आ रहा है उसको हम कहेंगे HTTP सर्वर या वेब सर्वर. इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो तो हम उसे वेब सर्वर कहेंगे. ओके You can see a diagram over here also. Web server and the client browser. वेब सर्वर और एक क्लाइंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, आपस में एक दूसरे की कम्युनिकेशन किस तरह से की जा रही है. वेब सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है क्लाइंट को, और क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है आपके सर्वर को. तो इन दोनों में कम्युनिकेशन हो रही है, तभी आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा है और दूसरा इन द आंसर ही इज गिविंग द रिस्पॉन्स ऑफ द रिक्वेस्ट. अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का बेसिक यहाँ कंसेप्ट उसने बताया था. Next is web browsers are used to access the World Wide Web in an easy manner. This is very quite simple statement that web browser are used to access the www in an easy manner. मतलब Google Chrome use करते हो, Internet Explorer use करते हो, Mozilla Firefox use करते हो, कुछ भी आप use करते हो, these all are the web browsers that is used for the accessing the World Wide Web. Web browsers and web servers function together as a client server system. वो कहते हैं वेब ब्राउजर्स जहां से आप सर्च कर रहे होते हो और वेब सर्वर जहां पर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है वेबसाइट्स के बारे में, टुगेदर फंक्शंस एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम. अब वेब ब्राउजर से आप सर्च करते हो और वेब सर्वर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो रिक्वेस्ट भी दे रहे हो ब्राउजर से और रिस्पॉन्स कहां से जनरेट कर रहे हो? सर्वर से. तो इन दोनों के फंक्शन को अगर हम इकट्ठा मिला के कहें तो हम ये कहेंगे दैट दे बोथ आर एक्टिंग एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम. Client server is a standard method for designing applications where data is kept in central location, central server, and efficiently shared with any number of other computers, the client on request. वही बात बार बार रिपीट की जा रही है. क्लाइंट सर्वर पहले भी एक्सप्लेन किया गया दैट क्लाइंट सर्वर इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन. मतलब क्लाइंट जो होता है वो देयर आर मल्टीपल क्लाइंट्स एंड देयर इज ओनली वन सर्वर. वन सर्वर इज सर्विंग मल्टीपल क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. So our next topic, now this is the long question, understand IP addressing. अब IP addresses किस तरह के होते हैं, इनकी दो स्टैंडर्ड टाइप्स होती हैं IP एड्रेस की, इन सारों को हम पढ़ेंगे. These all are very quite easy terminologies. Understand IP addressing. IP address stands for Internet Protocol Address. IP means Internet Protocol Address. It is a unique identifier that is associated with a device when it is connected to a network. So IP address is a unique address. This is one of the most important point, that IP address is a unique address which is associated with a device when it is connected to a network. जब कभी भी इंटरनेट पर आपने कनेक्शन कर लेना है तो एक यूनिक आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाता है. An IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol server, DHCP. अब ये आपका एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जिसमें जब आप आईपी एड्रेस जो होता है वो आपको इधर से असाइन किया जाता है. ये जो प्रोटोकॉल है ये आपको आईपी एड्रेस असाइन करता है, विच इज DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. There are two standards of IP addressing. अब दो तरह से IP addressing की जाती है. One is IPv4 and one is IPv6. IPv4 and IPv6 दो तरह से आपके IP addressing के standards डिजाइन कर दिए गए हैं. और कौन आपको IP एड्रेस जनरेट कर रहा है? DHCP का एक सर्वर है या प्रोटोकॉल कह लो इसे, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है ये आपको IP एड्रेस असाइन करता है.
and there are two standards of IP addressing, IPv4 and IPv6. So example, IPv4 address. IPv4 address is like, अब उसने बता दिया IPv4 नॉर्मल जो एड्रेसिंग स्कीम होती है हमारी IPv4 में की जाती है. And you can see the example of IPv6 address. It is a quite complex address. IPv6 जो होता है ये complex address होता है. When the Internet Protocol are originally designed, the standard was known as Internet Protocol Variant 4. IPv4. वो कहते हैं जब इंटरनेट आपका डिजाइन हुआ था स्टार्टिंग में, ओरिजिनली जब इंटरनेट आपका डिजाइन हुआ था तो जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड टर्म हम यूज कर रहे थे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, वो हम कर रहे थे IPv4. As shown in the above example, the IPv4 is divided into 4 groups separated by dot, where each group can contain a decimal value from 0 to 255. अब वो कहते हैं कि you can see over here that yes, this we are discussing about this. IPv4 address is like this. There are 4 things. Each of this is divided into 4 groups. एक IP address जो होता है ये आपके 4 groups में divide हुआ होता है. 4 ग्रुप्स में डिवाइड है, मतलब 0 से लेकर 255 तक हर ग्रुप में आप वैल्यू लिख सकते हो. यू कैन असाइन एनी डेसिमल वैल्यू एंड ईच ऑफ देम यू कैन सी ओवर हियर, ईच ऑफ देम इज सेपरेटेड बाय अ डॉट. अब ये डॉट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी एक डॉट आपको नजर आ रहा है, इधर भी ये भी एक डॉट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको डॉट नजर आ रहा है. तो ये हर जो होता है ना कॉम्बिनेशन, ये डॉट्स में डिवाइड होता है. 4 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं आपके. ओके सो और हर ग्रुप में आप कहां से कहां तक वैल्यूज लिख सकते हो, फ्रॉम 0 to 255. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन यूनिट नंबर 2 द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड अकॉर्डिंग टू दैट 255 बेस 10 दैट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ones. अब वो कहते हैं कि 255 की अगर हम बात करें, क्योंकि जो गिवन रेंज उसने आपको दी हुई है, जो रेंज आप जो यूज कर सकते हो वो आप यूज कर सकते हो 0 to 255. So, ये आपकी गिवन रेंज है, ये आपने याद रखना है 0 to 255. So when we will convert 255, that is a decimal number, into binary number, you will get 8 ones over here. It shows that maximum 8 bits are required for every group of IPv4. तो वो कह रहे हैं कि इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कि IPv4 के हर ग्रुप के लिए you need at least 8 maximum 8 bits. Maximum 8 bit आप हर ग्रुप के लिए यूज कर सकते हो. So in total 32 bits are required to store the whole IP address in IPv4 standard. तो टोटल अगर हर ग्रुप के लिए आप मैक्सिमम 8 यूज कर रहे हो, तो 4 ग्रुप्स हैं, तो 8 4 जा 32. अगर एक ग्रुप के लिए आप 8 बिट्स यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग 8 बिट्स फॉर वन ग्रुप. एक ग्रुप के लिए वन ग्रुप दैट इज यूजिंग 8 बिट्स. सो 8 बिट्स दैट वुड बी इक्वल टू 32 बिट्स. हर ग्रुप ने 4 बिट यूज करनी है, 8 बिट्स यूज करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स विल बी 32 are required to store the whole IP address in IPv4 standard. So जो आपका नॉर्मली आप एड्रेस यूज कर सकोगे कि वो कौन सा यूज करोगे, आप IPv4 का, जिसके अंदर आपकी 32 बिट्स हो रही होंगी, स्टोर हो रही होंगी एक IP एड्रेस के अंदर. ओके नेक्स्ट इज, due to more and more devices connected to the internet, IPv4 addresses are running out. To accommodate the increase in devices, we need another standard of IP addressing is introduced, which is called Internet Protocol Variant 6, IPv6. अब वो कहते हैं कि जब IPv4 के कितने एड्रेसेस मैक्सिमम हो सकते हैं. अब बहुत सारी डिवाइसेस हो गई हैं, इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है आपकी कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस का. इसके लिए वो कहते हैं टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस की जो कैपेसिटी थी उनको अकोमोडेट करने के लिए एक न्यू प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया, एंड दैट वाज नोन एज IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट 6. इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स. अब वो कहते हैं इसके अंदर हम 128 बिट्स यूज कर सकते हैं. उसके अंदर हम कितनी यूज कर सकते थे, वी कैन यूज ओनली maximum we can use 32 bits in that in IPv4. Yes, this one.
In IPv4 we were using only 32 bits, while in IPv6 we can use maximum 128 bits. In IPv6 there are 8 groups separated by colon. अब IPv6 में क्या हो रहा है, 8 ग्रुप्स बन रहे हैं. IPv4 में कितने ग्रुप्स थे आपके, 4 ग्रुप्स थे. अब IPv6 में कितने ग्रुप्स आपके बन रहे हैं, आपके 8 groups. You are making 8 groups over here. Yes, this 8 groups. You are using 8 groups over here, and all of them are separated by colon. Colon के साथ separate कर रहे हैं. वहां पर हम किसके साथ separate कर रहे थे? We are using dot over here, और यहाँ पर हम colon use कर रहे हैं. Each group can contain 4 hexadecimal digits. अब यहाँ वहां पर हम डेसिमल नंबर नॉर्मली हम 0 to 255 की रेंज यूज कर रहे थे, और यहाँ पर अब हम क्या यूज कर रहे हैं, 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स के ग्रुप्स हम डिजिट्स यूज कर रहे हैं. हेक्साडेसिमल हमने यूनिट नंबर 2 में डिटेल डिस्कशन कर ली थी व्हेन यू वर इन स्कूल. To store one hexadecimal digit we need 4 bits. So for a group in IPv6 we need 16 bits, and for 8 groups total 128 bits are required. So अब hexadecimal digit को store करने के लिए हमें हर digit को store करने के लिए 4 bits चाहिए होंगे. तो अगर हमारा group 4 bits का है तो 4 4s are 16. हमें 16 बिट्स चाहिए एक ग्रुप के लिए. अब टोटल हमारे 8 ग्रुप्स हैं, so we need 128 number of bits. फर्स्ट पॉइंट, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर्स 4 बिट्स. अब उसने यहाँ कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट है उसके अंदर आपको कितनी बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए. और 4 हेक्साडेसिमल अगर डिजिट्स हैं आपकी, क्योंकि ग्रुपिंग हुई हुई है 4 डिजिट्स की, तो 4 डिजिट्स हैं तो कितने बिट्स आपको चाहिए होंगी, 16 बिट्स. 4 multiplied by 4 that is 16. One group has 4 hexadecimal digits, so each group requires 4 multiplied by 4 that is equal to 16 bits. And 8 groups बने हुए आपके IPv6 के वेरिएंट में, तो 8 groups require 8 multiplied by 16 that is equal to 128 bits. अब ये मैथमेटिकली उसने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में उसने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आप यूज कर सकते हो ये फंक्शनैलिटी को. This thing is quite important and this thing is quite important. दो चीजें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एक ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है ये कितनी बिट स्टोर कर रहा है, आपकी 4 बिट्स एटलीस्ट स्टोर कर रहा है. अब 4 हेक्साडेसिमल डिजिट जो होंगे वो कितनी चीजें स्टोर कर रहे हैं, आपके 16 बिट्स को स्टोर कर रहे हैं. तो 4 into 4 that is equal to 16, and 8 ग्रुप्स हैं आपके. बेसिकली देयर आर 8 ग्रुप्स, so you need 8 into 16, 128 bits over here. These are the important points which I have underlined over here. Do you know IPv6 was developed by the Internet Engineering Task Force IETF. IPv6 became a draft standard in December 1998 and became an internet standard on 14th July 2017. IPv6 को आए हुए अभी बहुत अर्सा नहीं हुआ, ये 2017 में इंटरनेट स्टैंडर्ड में शामिल किया गया है. Before this we were only using IPv4 variant. Okay. Next is, although IPv4 is still in use today and provides approximately 4.3 billion addresses, however, this number is less than the population of the whole world. We also know that nowadays many persons have more than one devices connected with the internet at a time. IPv6 can allow up to 2 raised to power 128 addresses, which is 7.9 into 10 raised to power 28 times more than number of addresses in IPv4. अब वो कहते हैं IPv4 जो है this is still in use today, so approximately they are providing 4.3 billion addresses आपको provide करे जा रहे हैं. 4.3 billion addresses आपका IPv4 provide कर रहा है.
मगर क्यों हमें IPv6 की जरूरत पड़ी? बिकॉज यू कैन नो दैट नाउअडेज मेनी पर्सन्स आर यूजिंग मोर देन वन डिवाइस. हर डिवाइस, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, हर बंदे के पास 2-3 डिवाइसेस नॉर्मली आजकल लोग यूज कर रहे हैं. दैट इज वाई मल्टीपल more number of IP addresses were required, जिसकी वजह से IPv6 को लॉन्च किया गया. And IPv6 can allow up to 7.9 multiplied by 10 raised to power 28 times more number of devices. This is a very large amount of IP addresses which our IPv4 v6 variant is providing. This is an important thing. ये important points है जो मैं highlight करती हूँ. Okay. Next topic is routing. या router क्या होता है आपका? राउटिंग. अंडरस्टैंड अ राउटर. अब राउटर क्या होता है? नॉर्मली हर घर में राउटर आपका लगा हुआ होता है, मगर हमें पता ही नहीं होता ये एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रहा है. A router is a networking device that forwards data packets from one network to another. Router क्या करता है? आपके डाटा के पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर लेकर जाता है. As the internet is called network of networks, so a router also directs the traffic on the internet. तो राउटर क्या करता है कि आपके इंटरनेट पर ट्रैफिक डालता है. आप राउटर को रिक्वेस्ट देते हो, राउटर क्या करता है? इन जनरेट आपकी रिक्वेस्ट की जनरेट पे रिस्पॉन्स जनरेट करता है, इंटरनेट पे ट्रैफिक डालता है कि राउटर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है कि ये चीज ओपन करनी है, तो इंटरनेट जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता है, आपको नजर आ रही होती है वो सारी चीजें. So a router is a networking device that forwards data packets from one network to another. This is the definition of router. A router analyzes the destination IP address of an incoming data packet, determines the best route to forward the packet, and then sends it accordingly. A router is usually placed at the meeting point of or more networks. अब वो कहते हैं राउटर जो होता है वो एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो होता है जहां से पैकेट आपका आ रहा होता है उसको डिटरमिन करता है, उसको एनालाइज कर रहा होता है, और अकॉर्डिंगली आपके जो पैकेट रिसीव हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली इन रिटर्न रिस्पॉन्स में आपको जो बेस्ट रूट पर, मतलब जो जहाँ ट्रैफिक इंटरनेट की क्लियर होती है वहां से इन जनरेट एक और पैकेट उन्हें फॉरवर्ड कर रहा होता है. मतलब मैसेज जो आप भेज रहे हो और आ रहे हो, आपको पैकेट्स नजर कुछ नहीं आ रहे होते, जो आप सिंपली एक टेक्स्ट भेज रहे होते हैं, मगर इन बैक एंड पे क्या हो रहा होता है? पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्किंग हो रही होती है राउटर के थ्रू. Okay, so we will in this lecture we will study up till this topic, understand a router. बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. Up till now, any questions? You can ask any questions. If you need anything to be asked again, you can ask.